Okay, so greetings everyone. So my name is Rahim Rasool and I currently work for Data Science Dojo as an associate data scientist. So I'm really glad to see all of you here. It's always very exciting to find so many AI enthusiasts together, and this is what actually interests me a lot. So while working at Data Science Dojo, we usually work on organizing boot camps all across the world. These are training boot camps to train people in data science, and moreover, we also do consulting projects. But working there, I have a very limited experience, but I actually noticed the importance of some of the aspects that could actually, if we work on them, that could actually help boost our profiles. And one of them is feature engineering. And this is why my talk is actually based on this topic of feature engineering today. So I'm not sure how many of you are familiar with the concept of machine learning, और आप में से कितनों ने data science यूज़ किया होगा, real life problem solve की होंगी. लेकिन अगर आप beginners हैं उसमें, so feature engineering does hold a lots of important, और beginners के लिए वो उसको grasp करना मुश्किल होता है. But the topic that I'm introducing would be to use feature engineering using feature tools. ये एक ऐसी library है that could actually help you in creating features without necessarily having background knowledge. So this could be really helpful in boosting your profile as soon as you enter in the field of data science. So, sorry? Is there a clip or something? Okay. So the importance of this talk could actually be taken by this fact that one of my favorite authors, Pedro Domingos, ने book लिखी थी, The Master Algorithm. It's a really interesting book to get some theoretical knowledge about AI. And he actually says that this could actually be a big difference in deciding if a project would be successful or it would fail. So ये काफ़ी important characteristic है इसका. And probably I believe that some of you might be beginners here who might be completely new to this concept. तो इसलिए मैं इस presentation में कुछ ऐसे elements लाऊंगा कि that might be quite primary. तो जिनको आता है just bear with me, but I'll try to introduce. So just introducing to the concept of machine learning कि how it actually works. So हमारे पास एक input data होता है जिसमें हम एक चाह रहे हैं कि हम tortoise और crab के एक turtle और crab के दरमियान हम distinguish करें. तो और उसको इस पर एक model बनाए जो इन दोनों animals के दरमियान जो है एक classifier करे. तो उस classifier को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक important step है feature engineering का, कि अगर मैं किसी को भेजता हूँ कि टर्टल और क्रैब की जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करें, तो वो क्या क्या नोट करता है और फिर वो मैं अपने मॉडल को दूंगा, मेरा मॉडल एक क्लासीफाई बनाएगा और उसके बाद जो है कोई अनसीन डेटा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तो उसकी बेसिस पे वो बता देगा कि ये क्रैब है या टर्टल है. तो हमारा एक तरह से ये पर्पस होता है अचीव करने का. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि फ़ीचर्स कौन से सिलेक्ट किए हैं. ठीक, तो अगर कोई बंदा जाता है उसकी मतलब उसकी एनिमल्स के बारे में इतनी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो व्हाट ही डज के वो ये नोट करता है कि अगर इसका आउटर स्ट्रक्चर हार्ड है या नहीं, तो वो कर देता है येस फॉर टर्टल और येस फॉर क्रैब. तो दैट वोंट बी रियली इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि वो हमें हेल्प नहीं करेगा कि हम क्लासीफाई करें दोनों एनिमल्स के दरमियान. बट इफ़ इट वॉज समथिंग एल्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ लेग्स या फिर इफ़ इट हैज़ अ क्लॉज और नॉट, तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है कि यूज़ हो सकता है इसको क्लासीफाई करने में. तो दैट वुड हेल्प अस बिल्ड अ रियली गुड मॉडल. तो दिस माइट बी नॉट अ रियली गुड एग्जांपल दैट आई माइट हैव गिवन, लेकिन जब हम अपनी डोमेन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि जो हम बूट कैंप स्टूडेंट्स हम ला रहे हैं अपनी डेटा साइंस डोजो में, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कैसे ला सकते हैं, हम उनकी वेब एनालिटिक्स एक्टिविटी को नोट करते हैं और उसके लिए हमें डोमेन नॉलेज चाहिए होती है ताकि हम फीचर इंजीनियरिंग सही तरह कर पाएँ. तो आप अगर डेटा साइंस में नहीं हैं और अपनी किसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काम करें, अगर आप वेब एनालिटिक्स में काम करें या नॉर्मल आप मार्केटिंग में काम करें, तो कुछ डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप इसका इंट्यूशन ले लें एंड यू जस्ट गेट सम आइडिया ऑफ इट, दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर प्रोसेस. तो फीचर इंजीनियरिंग अगर आपको अब तक कुछ क्लियर आइडिया नहीं हुआ वो होता क्या है फीचर इंजीनियरिंग, दैट हमारे पे फीचर्स होते हैं विच आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे इनपुट डेटा में होते हैं. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है, उस इंस्टेंस को डिस्क्राइब करता है, तो उसको कहते हैं मेन फीचर्स. और फीचर इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होता है कि मैं उन फीचर्स के थ्रू कोई नए फीचर्स बनाऊं या मैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दूं ताकि मेरा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाए. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हम नोट करते हैं कि कौन सा
एक स्टूडेंट है जिसने बूट कैंप के लिए रजिस्टर किया और फिर बूट कैंप की डेट कब हुई। अब जब बूट कैंप रजिस्टर का जो हमारे पास डेटा होगा, एक कॉलम होगा, उसके अंदर सिर्फ डेट्स होंगी और बूट कैंप स्टार्ट डेट जो होती है कि किस टाइम बूट कैंप स्टार्ट हो रही है, वो भी एक डेट्स का एक कॉलम होगा। ऑन इट्स ओन इट वोंट मेक एनी सेंस, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं नया फीचर बनाऊँ कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि मैं नंबर ऑफ डेज बिटवीन व्हेन ही रजिस्टर्ड एंड बिटवीन व्हेन दिस कैंप स्टार्टेड, तो वो हमें एक डिफरेंस आ जाएगा कि हाँ देर आर इस कस्टमर के लिए 80 डेज थे, इस कस्टमर के लिए 50 डेज थे, एंड दैट माइट बी मोर हेल्पफुल। और शायद मुझे हेल्प करे कि मैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को उस तरह ऑर्गेनाइज करूँ कि मैं अगर ऑन एवरेज 3 महीने पहले लोग रजिस्टर करते तो मैं 3 महीने पहले अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनाइज करूँ। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि फीचर इंजीनियरिंग वुड बी हेल्पफुल इन एनी ऑफ आवर केस। तो अगर आप जिस डोमेन से, अगर आपकी इस डोमेन नॉलेज है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इस केस में। लेकिन कुछ ऐसे, और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से जानी जा सकती है कि कैगल आपको पता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं। तो कैगल कंपटीशन में यूजली यही नोट किया जाता है, और बड़े जो कैगल ग्रैंड मास्टर्स हैं जो सबसे टॉप इनकी प्रोफाइल टॉप 100 में आते हैं पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में, वो यही कहते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसकी वजह से वो टॉप रैंकिंग्स में आ पाए हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इन दिस। एंड मोर ओवर एंड्रू यंग, a lot of you might have used his machine learning course, so he also actually specifies that if it's applied machine learning, that is actually more about feature engineering rather than anything else. So just to give some एक example, एक relational database है जिसमें हमारे पास 3 tables हैं। एक customer का table है, फिर हर customer कितने sessions करता है, web sessions होते हैं, उसका एक table है हमारे पास sessions के नाम से, and then there is another table ट्रांजैक्शंस, तो वो हर सेशन में कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो मैं कस्टमर हूँ, मेरे कितने सेशन हैं और हर सेशन में मेरी कितनी ट्रांजैक्शन है, उसके टेबल है। और ये आपस में जो डेटा सेट है वो रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है उसकी, और वो सेशन आईडी में यूज़ हो रहा है, और फिर सेशन आईडी की जो प्राइमरी की है वो ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिफाइन करिए। अब ये 3 टेबल्स का डेटा सेट है। यूजली आप एक्सपोज नहीं हुए होंगे कि जब भी हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस का इतना काम नहीं होता, एक सिंगल टेबल होता है। लेकिन इसका क्या यूज़ होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी इस टेबल की एग्जांपल है, ठीक है, कि हर कस्टमर के हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, तो उसके सेशन हैं। तो एक कस्टमर के मल्टीपल सेशन हैं, और जब वो कस्टमर के सेशन होते हैं उस पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर रहा है वो हर सेशन में, तो हमारे पास डेटा एक मौजूद है। अब इसमें हम 2 तरह की फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसको क्लासीफाई किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में और एग्रीगेशन में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फीचर इंजीनियरिंग होती है वो ये होती है कि मैं एक ही टेबल पे सारी फीचर इंजीनियरिंग करूँ। तो फॉर एग्जांपल जॉइन डेट है, अब मैं जॉइन डेट को इस तरह इस पर इंजीनियरिंग कर सकता हूँ कि इज दिस अ वीकेंड और अ वीकडे, तो ये एक हमारे पास बड़ा अच्छा फीचर बन सकता है। और फिर अगर मैं एग्रीगेशन की बात करूँ तो एग्रीगेशन का मतलब होता है कि हम फीचर्स 2 टेबल्स के अक्रॉस पैदा करें। तो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि हर कस्टमर की एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है, या फिर हमारे पास एक डिवाइस क्या है। तो हर कस्टमर जो है फॉर एग्जांपल हर सेशन में शायद वो डिफरेंट डिवाइस यूज़ कर रहा हो, किसी में मोबाइल, किसी में पीसी। तो मैं ये कह सकता हूँ उसका मोड निकाल दें कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास एक और नया फीचर बन जाएगा कि हर कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिवाइस कौन सा है। और जब हम इन फीचर्स को यूज़ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितने हेल्पफुल है और हमें इनसाइट्स गेन करने में कितनी मदद करता है। लेकिन इस सब का मसला ये है कि ये प्रोसेस जो है ना बहुत मैनुअल प्रोसेस है, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। एज ए सेट कि क्योंकि मेरे पास डोमेन नॉलेज है अपनी कंपनी के बारे में, तो ओनली देन आई विल बी एबल टू क्रिएट दीज फीचर्स। लेकिन फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस आर प्रोबेबली न्यू टू डेटा साइंस, और हम इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है कि हम कैसे फीचर्स को क्रिएट करना है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमारे पास वो आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए हम बेहतर ये कि हम ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग यूज़ करें कि हमारे पास एक फीचर टूल्स, एक लाइब्रेरी है विच एक्चुअली हेल्प्स अस इन अचीविंग दैट। वो ये करेगी कि वो हमारे लिए अगर फॉर एग्जांपल 20 या 30 फीचर्स का अगर हमारे पास एक टेबल मौजूद है, उसमें मैं उस पर फीचर इंजीनियरिंग करने लग गया, इट कुड बी प्रॉबेबली हो जाएगा मुझसे 2 या 3 दिन में। लेकिन अगर यूजली हमारे पास होते हैं 150 या 200 कॉलम्स के डेटाबेस होते हैं, तो उस पर आई कैन इवन कंसिडर कि इस पर मैं इतना सारे फीचर इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग से ये होता है कि इतने बड़े डेटाबेस के लिए आप आराम से एक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं विच कैन क्रिएट फ्रॉम 200 to 1000 फीचर्स, एंड देन यू कैन फीड इट टू योर ML एल्गोरिदम। और कुछ ऐसे भी फीचर्स आते हैं जो आपने कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन
by using automated engineering, you can actually achieve that. तो मेरी प्रेजेंटेशन का थोड़ा फॉर्मेट ये होगा कि once I just explain you a bit about how feature tools actually what functionality feature tools provide, उसके बाद मैं एक Jupyter notebook डिस्प्ले करूँगा जिस पे एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम नए फीचर्स बना रहे हैं. तो फीचर टूल्स की अगर 3 बातें जो आपको नोट करनी चाहिए, एक है इसका एंटिटी सेट, दूसरा है उसके प्रिमिटिव्स और तीसरा है डीप फीचर सिंथेसिस, DFS जिसको कहते हैं. और ये कोई ज़्यादा डोंट गेट टू मच डॉन्टेड बाय दीज टर्म्स, काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं और आगे बताऊंगा कि इनको सिर्फ इन 3 टर्म्स को जानने से आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं. तो एंटिटी सिंपल ये है कि एंटिटी एक एंटिटी सेट है हमारे पास विच इज़ एक्चुअली एक स्टोर है जिसके अंदर हमारा सारा डेटाबेस मौजूद है, सारे टेबल्स हमारे उसमें मौजूद हैं. तो अगर हमारे पास पिछले केस में 3 टेबल्स मौजूद थे तो उन 3 टेबल्स को अगर हम एक एंटिटी सेट बना सकते हैं, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि कस्टमर्स के नाम से मैं पूरा एक एंटिटी सेट बनाता हूँ जिसमें सारे हमारे पास टेबल्स मौजूद है. दैट्स एन एंटिटी सेट, एज सिंपल एज दैट. और उसमें एक सिंगल जो एंटिटी होगी वो हर टेबल को एक एंटिटी कहेंगे, सही है. एंड देन उन टेबल्स के क्या दरमियान क्या रिलेशन बनता है, तो वो रिलेशन भी हमें स्पेसिफाई करना होगा. तो हमें एक एंटिटी के लिए 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एन एंटिटी सेट, एंटिटीज़ और फिर उनका रिलेशनशिप क्या है आपस में. तो पहली चीज़ हमारी एंटिटी थी, दूसरी थी प्रिमिटिव्स. प्रिमिटिव्स अगेन प्रिमिटिव्स होते हैं वो सिंपल फंक्शंस जिनसे हम न्यू फीचर्स बना सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल एक होता है, अगर मैं मीन का फंक्शन यूज़ करूँ कि कॉलम का मीन निकालना है, तो दैट इज़ वन प्रिमिटिव. अगर मैं करूँ कि डेट के लिए कि अगर वो डेट वीकेंड पे आ रही है, वीकडे पे आ रही है, वो एक अदर प्रिमिटिव है. तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे प्रिमिटिव्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें 2 तरह के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं और एग्रीगेशनल होते हैं. तो आपको ये जाने कि प्रिमिटिव्स के अंदर ये 2 टाइप के प्रिमिटिव यूज़ होते हैं. इसमें और भी फ़ायदा ये है कि फीचर टूल्स आपको NLP के लिए भी प्रिमिटिव प्रोवाइड करता है. तो NLP में जब हमें टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है, बहुत सारा टेक्स्ट होता है, ये तो हम टेबुलर डेटा की बात करें, लेकिन जब टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है तो वो भी काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है. तो फीचर टूल्स में एक एडिड बेनिफिट ये कि हमारे पास टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए भी प्रिमिटिव हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वर्ड में कितने स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं या फिर एक में कितनी दफ़ा पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो फ़ौरन कैलकुलेट कर लेता है. अगर हम नॉर्मल उसके लिए फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं तो 3-4 लाइन का हर प्रिमिटिव के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू. और ये एक प्रिमिटिव्स की लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ एग्रीगेशन और कुछ ट्रांसफॉर्म प्रिमिटिव है. तो फॉर एग्जांपल कि मंथ का प्रिमिटिव है कि किसी भी डेट को फ़ौरन मंथ में कन्वर्ट कर लेना, उसका एक प्रिमिटिव है. और फिर एग्रीगेशनल प्रिमिटिव है कि नंबर ऑफ़ यूनिक सेशंस अगर हमें यूज़ करना है तो हम नंबर ऑफ़ यूनिक वाला प्रिमिटिव यूज़ कर सकते हैं. और फाइनली आते डीप फीचर सिंथेसिस. सिंपली डीप फीचर सिंथेसिस का मतलब ये है दैट इट विल अलाउ यू टू क्रिएट दोज फीचर्स. सो इसको डीप सिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम एग्रीगेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. तो हम एक टेबल से दूसरे टेबल में जा रहे होते हैं, तो उस फीचर सिंथेसिस के लिए हम डीप फीचर सिंथेसिस यूज़ करते हैं. इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डेप्थ के नाम से. तो डेप्थ एक्चुअली का मतलब ये होता है कि अगर हम कस्टमर टेबल से सेशंस टेबल को में एक फ़ीचर बना रहे हैं कस्टमर सेशन टेबल में, तो वो एक डेप्थ 1 इंक्लूड होगा. तो और अगर हम डेप्थ 2 कर देते हैं तो वो कस्टमर्स सेशंस और सेशंस के अंदर ट्रांजैक्शंस वो फीचर बनाएगा. तो यूजली जहाँ तक मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स देखी वो ज़्यादा डेप्थ 2 तक जाती हैं, डेप्थ 3 तक. उससे ज़्यादा आपका फिर डेटा सेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आपके यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो दो ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये कि आपको भी थोड़ी इसको बैकग्राउंड समझना चाहिए कि हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्स. और तो जो फीचर जो मैंने अभी डेटाबेस डिस्कस किया था विच वाज रिगार्डिंग कस्टमर्स और उनके सेशन और ट्रांजैक्शन, 3 टेबल थे और उनके लिए फिर मैंने फीचर्स मैंने ये DFS यूज़ किया फीचर्स बनाने के लिए. तो आप देखें कुछ आपके पास फीचर्स बने थे. 3rd नंबर पे देखें कि सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस. तो एक एग्रीगेशन प्रिमिटिव है कि उसने देखा कि हर सेशन में कितने ट्रांजैक्शन है उनका सम कर दूँ, उनको मैं ग्रुप कर दूँ, बजाय कि मैं उसको एस मल्टीपल ट्रांजैक्शन प्रेजेंट करूँ, उसको ग्रुप करके एक सेशन के साथ इंक्लूड कर दूँ. फिर आप देखें कि वीकडे है कि जॉइन डेट वीकडे पे था या नहीं था, तो उसका एक अलग से एक कॉलम बन गया और वो बूलियन कॉलम होगा जो उसको 1 कर देगा अगर वो वीकडे पे है, 0 कर देगा अगर नहीं है. अब आप देखें कि यू कैन एक्चुअली एनालाइज के वीकडे को उसका फंक्शन बनाना फॉर पर्टिकुलर डेट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू. और 4-5 लाइन की कोडिंग लगेगी, लेकिन ये फिर सबके लिए बनाना वुड ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो इस प्रोसेस से वी एक्चुअली सिंप्लीफाइड एवरीथिंग
और हमारे पास शायद इसमें से काफ़ी फीचर्स ऐसे होंगे जो नेसेसरी ना हो, काफ़ी यूजलेस हों, लेकिन अब हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन ट्री यूज़ करें या कोई फीचर सिलेक्शन टूल यूज़ करें तो वो हमें बता देगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं जो हमें अपने ML के लिए यूज़ करने हैं। तो दैट एक्चुअली सिंप्लीफाई द प्रोसेस एज वेल। तो मैं एक जुपिटर नोटबुक दिखाऊंगा विच वुड एक्चुअली परफॉर्म दिस फीचर सिंथेसिस ऑन अ रियल वर्ल्ड डेटा सेट। So just give me some time. I need to bring that up. Give me a minute, please. इसी पे शुरू करना। सर आपकी शायद खुली जुपिटर नोटबुक। ये मैंने दिया नहीं था इनको। लगा सकते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने यूज़ किया, ये मैंने अपनी रिपोजिटरी पे होस्ट किया। तो अगर कोई एग्जांपल चाहिए हो, यू कैन गो टू माई रिपोजिटरी और राहिम रसूल /pycon के नाम से गिटहब पे रिपोजिटरी है, जहाँ पे ये छोटा सा एक नोटबुक मैंने प्रिपेयर किया। तो इनिशियली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो फीचर टूल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसको एज FT में यूज़ करेंगे पूरे प्रोसेस में। अगर आपको इंस्टॉल करना जुपिटर नोटबुक अगर आप यूज़ करें, यू कैन यूज़ अ सिंपल कमांड ! pip install feature tools, that's it। तो आपकी जुपिटर नोटबुक में वो इंस्टॉल हो जाएगा। बैकग्राउंड पे अगर आपके एनाकोंडा चल रहा है तो इट विल बी वेरी सिंपल। तो जो डेटा सेट दैट आई एम यूजिंग इज़ अ रियल वर्ल्ड डेटा सेट। ये है जो शिकागो में टैक्सी डेटा सेट है वो है। इट्स अ वेरी बिग डेटा सेट। उसमें 2014 से लेकर जितनी भी टैक्सी ट्रिप्स हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है। और अगर इसको देखें तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने वो सारे, इसमें तकरीबन 35 मिलियन रोज़ थी, सारी मैंने यूज़ नहीं की। मैंने सिर्फ शुरू की 10,000 रोज़ हैं वो उठाई हैं ताकि उसी पे हमारा काम सिंपल हो। तो अगर मैं इस डेटा सेट को देखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे फीचर हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप ID, टैक्सी ID। अब ट्रिप ID सारी यूनिक है लेकिन टैक्सी ID मल्टीपल हैं, क्योंकि मल्टीपल टैक्सीज हैं, एक टैक्सी ने मल्टीपल ट्रिप्स किए होंगे। और ओके तो इस पर ट्रिप का टाइम स्टैम्प, कब स्टार्ट होता है ट्रिप वो भी है, कब ट्रिप का ड्रॉप ऑफ पॉइंट, पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट क्या है वो भी है। तो और फिर फेयर्स और ये है कि वो पेमेंट टाइप कौन सा यूज़ करते हैं, किस कंपनी की टैक्सी यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट दिस डेटा सेट प्रोवाइड्स अस। और हमारा प्रोसेस, हमें क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रॉम दिस डेटा सेट मैं प्रिडिक्ट करूँ कि अगली जो टैक्सी है, अगर एक टैक्सी का ट्रिप आता है जिसका हमें ये पता हो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, तो मैं उसका फेयर प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। तो जो मेरा पर्पस है इस डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट करने का वो ये है कि मैं हर टैक्सी के लिए फेयर प्रेडिक्ट करूँ। तो मैं सिंपल प्री प्रोसेसिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये कि मैंने कुछ जो इरेलीवेंट कॉलम्स थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्पार्स डेटा था, मिसिंग वैल्यूज थी, और कुछ जो बिल्कुल इरेलीवेंट थे हमारे लिए, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और फिर हमारे पास काफ़ी कम जो बची थी उसमें काफ़ी कम मिसिंग वैल्यूज थी, तो मैंने मिसिंग वैल्यूज रिमूव कर दी इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। और अब मैं एंटिटी सेट बना रहा हूँ। तो पहले मैं शुरू में क्या कर रहा हूँ, ES के नाम से मैं एक एंटिटी सेट बना रहा हूँ। तो मैं फीचर टूल्स का ft.entity_set टैक्सी के नाम से मैं एंटिटी सेट बना रहा हूँ। यानी हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, एक स्टोर होगा जिसके अंदर हमारे सारे टेबल्स होंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही टेबल है लेकिन हम इसे एक और टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक अपने एक एंटिटी सेट बना लिया। नेक्स्ट मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पहले अपने वेरिएबल टाइप्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं ट्रिप ID, टैक्सी ID, पिकअप, कम्युनिटी एरिया, ये न्यूमेरिकली स्टोर्ड हैं और जो पहले दो हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर सिंथेसिस करूँ तो ये इसको एज कैटेगोरिकल वैल्यूज़ ले। तो मैं इस पर यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये भी फीचर टूल्स का एक है कि vtypes.categorical, वो उसको एज ए कैटेगोरिकल वैल्यू लेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं
एक और सिंपल फंक्शन है कि ES डॉट एंटिटी फ्रॉम डेटा फ्रेम। अब मैं क्या करूँ, मैंने एक एंटिटी सेट बना लिया, अब मैं उसमें से एक एंटिटी बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रिप्स की एक एंटिटी हो, एक ट्रिप्स का एक अलग टेबल हो और टैक्सीज़ का एक अलग टेबल हो, क्योंकि हमारे पास यूनिक टैक्सी आईडी हैं और हर टैक्सी आईडी की एक कंपनी है। तो एक टैक्सीज़ का अलग टेबल हो, और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम एग्रीगेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास काफ़ी नई फीचर्स ऐसे आएंगे जो हमारे पास सिंगल टेबल से नहीं आ सकते थे। तो इसका काफ़ी बेनिफिट ये होगा। तो ये सारा आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है कि अगर आप फीचर टूल्स की साइट पे जाएंगे तो वहाँ ये फंक्शन अवेलेबल हैं और आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको ऐसे फीचर्स क्रिएट करके देगा कि आप कंपटीशन में पार्ट लेंगे, दैन इट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन बूस्टिंग योर रिजल्ट बाय मेनी फोल्ड्स। तो मेरे पास एक एंटिटी थी टैक्सीज़ के नाम से, ट्रिप्स के नाम से, उससे मैंने ट्रिप्स के नाम से उससे मैं एक और एंटिटी निकालूंगा टैक्सीज़ के नाम से, कि हर एक और टेबल होगा टैक्सीज़ का। तो वो मैंने डिफ़ाइन किया है यहाँ। तो पहले तो मैंने ट्रिप्स का डिफ़ाइन किया था, तो हमारे पास अभी एंटिटी सेट में सिर्फ एक ट्रिप्स का टेबल है जिसके 14 कॉलम्स हैं, और अभी फ़िलहाल कोई रिलेशन नहीं क्योंकि ये एक ही टेबल है। लेकिन मैं एक और एंटिटी ऐड करूँ टैक्सी के नाम से, उसकी यूनिक आईडी टैक्सी आईडी होगी और एडिशनल जो वेरिएबल मैं ऐड करूँ कंपनी का होगा। तो आप देखें मेरे एंटिटी सेट में 2 टेबल्स हो गए, एक ट्रिप्स के नाम से 13 कॉलम्स और एक टैक्सीज़ के नाम से जिसके सिर्फ 2 कॉलम है, टैक्सी आईडी और टैक्सी की कंपनी, और रिलेशनशिप भी खुद ब खुद डिफाइन हो गया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है वो प्रिमिटिव्स का है। मैं 2 तरह के प्रिमिटिव्स डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिमिटिव्स, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिमिटिव्स वो होते हैं जो एक ही टेबल पे अप्लाई किए जाते हैं, और एग्रीगेशन जो मल्टीपल टेबल्स के अक्रॉस अप्लाई किए जाते हैं। तो मैं कुछ डिफाइन करें, मिनट, आवर, डे, वीक, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिमिटिव्स हैं, और ये एग्रीगेशन प्रिमिटिव्स हैं। इसकी लिस्ट है, वो भी जो मैंने आपको प्रेजेंट की थी, यू कैन गेट इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन वेरी इजीली। और ये जो एग्रीगेशन प्रिमिटिव्स परफॉर्म किए ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट है, तो अगर आप इसको ना भी मेंशन करें बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिमिटिव्स आ जाते हैं आपके। अब मैं कर रहा हूँ अपना DFS यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं नए फीचर्स बना रहा हूँ। तो पहले मेरे पास 14 कॉलम्स है, एज आई शोड यू 14 फीचर्स है। अब मैं ये DFS के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ। एक मैं फीचर मैट्रिक्स बना रहा हूँ। मेरा फीचर मैट्रिक्स क्या होगा, इट विल एक्चुअली बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फीचर्स दैट आई हैव क्रिएटेड। तो एक फीचर मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगा। तो एक हमारे पास एक सिंगल फिर एक डेटा फ्रेम आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास सारे जो फीचर्स हमने एक तो एग्जिस्टिंग भी और जो नए बनाए हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, और फिर एक फीचर्स की लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से फीचर्स हैं। तो आप देखें मैंने डिफाइन कर दिए मेरा एंटिटी सेट कौन सा है, टारगेट एंटिटी कौन सा है, किस एंटिटी के अंदर ये सब आना चाहिए, और मैंने अपने दोनों प्रिमिटिव्स की लिस्ट डिफाइन कर दी। एज यू कैन सी इसमें 68 फीचर्स नहीं बना दिए और 68 फीचर्स और बना दिए। तो हमारे डेटा सेट अब काफ़ी एक्सपेंड हो गया, और ऐसे यूज़फुल फीचर्स निकल है जो शायद हमारे मॉडल को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर मैं 68 फीचर्स ऑब्वियसली 10 से बनाने होते तो मैन्युअली बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और कौन से फीचर्स बने, तो मैंने फीचर्स की लिस्ट बना ली। अब ये देखें कि मेरे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट आई जिसमें मिनट आया कि हर ट्रिप का जो स्टार्ट टाइम है उसको वो किस मिनट पे हो रहा है, किस आवर पे हो रहा है, किस डे पे हो रहा है, वीकेंड पे है या नहीं है, और एक टैक्सी का जो कितनी ट्रिप्स करी एक टैक्सी उसका सम जो है वो भी हमारे पास एडिशनल फीचर बन गया है। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है क्योंकि 68 फीचर्स हमने बनाए हैं, और अब इन सब के लिए हमें फिर अलग से कोड लिखना पड़ता है, 3-4 लाइनों का कोड, तो इट कुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने फीचर्स, क्योंकि आगे जो हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं वो यूजली अच्छे नहीं होते स्ट्रिंग्स या कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के साथ। तो व्हाट वी डू इज़ दैट वी इनकोड देम, हम लेबल इनकोडर यूज़ करते हैं या वन हॉट इनकोडर, ताकि जो ML एल्गोरिथम से जो है वो इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यूज़ के साथ काम कर सकें। वो नंबर्स के साथ ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हैं रेदर देन स्ट्रिंग्स। तो इसलिए मैं इनकोड कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पेमेंट के नाम से अगर एक फीचर है कि पेमेंट कार्ड से हुई है कैश से हुई है, तो उसके फिर दो नए कॉलम्स बना देगा, कार्ड और कैश के नाम से। तो जहाँ कार्ड होगा उसको वो 1 कर देगा और दूसरे को 0, तो 1 और 0 बूलियन की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेगा। तो बस लास्ट चीज़ है, मैं एक XGBoost पर एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 2 लाइन ऑफ कमांड लिखी है XGBoost एल्गोरिथम डिफाइन करने के लिए। मैंने उस पर अपना मॉडल फिट किया, और जो मैंने ट्रेनिंग सेट था मेरा, तो मैंने उसको ऊपर स्प्लिट किया। ये scikit-learn अगर आप लाइब्रेरी यूज़ करें तो इसमें आपको वो एक अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है कि दैट यू कैन डिवाइड योर ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। और फिर मैं उसको 0.25 यानी मैं 75% मेरा ट्रेनिंग सेट हो गया, 25% टेस्ट सेट, जिसके अगेंस्ट मैं वैल्यूएट करूँगा अपने एल्गोरिथम, अपने मॉडल को।
तो मैंने अपने ट्रेन और टेस्ट सेट लिया और उससे अपने मॉडल को फिट किया, और एज यू कैन सी मेरा एक XGBoost रिग्रेसर बन गया, एक रिग्रेशन मॉडल है, क्योंकि हम फेयर को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं तो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम ही है। अब मैं उसको एवेलुएट कर रहा हूँ। तो मैंने पहले प्रिडिक्ट किया अपने जो सिर्फ 10 जो है मैंने फेयर्स को प्रिडिक्ट किया, तो आप देखें मेरे पास कुछ फेयर्स आ गए जो प्रिडिक्शन इस एल्गोरिथम ने किया, और साथ में मैंने इनकी ये मैंने एवोल्यूशन मैट्रिक्स है जो रिग्रेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, विच इज़ मीन स्क्वायर्ड एरर। तो वो मीन स्क्वायर्ड एरर मैंने कैलकुलेट किया है, विच इज़ जनरली रिलेटिवली गुड नंबर जो हमें इस मॉडल के थ्रू मिला है। और एट लास्ट XGBoost हमें एक और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करें हर फीचर की। तो आप देखें जो कुछ जनरली जो हमारे पास पुराने फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं उन फीचर्स की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हमने नई फीचर्स बनाए तो आप देखें दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट एल्गोरिथम। यानी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग 14 फीचर्स थे उनमें से 4 तो काफ़ी अच्छे थे, उन 10 फीचर्स जो हमारे पास पड़े हुए थे उनमें से हमने काफ़ी न्यू फीचर्स बनाए जो इस एल्गोरिथम को काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो दैट एक्चुअली कैन हेल्प यू इन सिलेक्टिंग के अंडरस्टैंडिंग के कौन से जो है फीचर्स हैं आपके आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगेन ये जितनी भी मैंने आपको फंक्शनैलिटीज़ बताई हैं, यू कैन ईजिली गेट इट फ्रॉम द फीचर टूल्स वेबसाइट। बस आपको एक जनरल आइडिया मिल गया, एक इंट्यूशन मिल गया है, यू कैन ईजिली एक्सप्लोर इट। सो इफ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you, sir.